everyone. Namaskar. Do all the good you can, By all the means you can, in all the ways you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. as long as ever you can. Remembering this quote, we introduce ourselves to you all as Kaur sisters. I am Dilneet Kaur, founder of Riches Multi Services, which in turn is a consultant for wealth creation group of companies. And I, Charanpreet Kaur, a banker by profession, and we both are social activists by choice. उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप सब हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? Are we audible enough? Are we audible enough? Kindly give the answers. Okay, thanks a lot. Thanks for the cooperation. So, we are your hosts today for the core principle of our company on social aspect as well as the need of the time. Let the hunger die and not the hungry. Let the hunger die and not the hungry. भूख को मारो, भूखे को नहीं मारना. उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबको पहले ये समझना जरूरी है कि हंगर, स्टारवेशन, मैल न्यूट्रिशन है क्या. सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जब तक हम इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाएंगे, हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. Exactly. हंगर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ, कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स जिन्होंने मुझे तो बहुत ही शेक किया था एंड ऑफ कोर्स आपको भी बहुत ज्यादा. Recently, 3 girls were found outside a society dead. They were the daughters of a rickshawala. Unfortunately, they died just outside a well-populated society. So, postmortem was done, and the reports told that they died because there were no traces of fat inside their stomachs since the last 1 week. Oh my Pathetic. God. Pathetic. Last Isn't it? one Last week. 1 week, they had not eaten anything, and in such a population and populated society. So-called educated society. Going ahead, I read this news in the midnight, which left me unslept for the whole night. And that very day, I decided that I'll take this issue personally as well as socially to great extents. But unfortunately, coronavirus pandemic started, and all our inboxes, all our WhatsApps, and all our news channels got filled with these types of news more often. And when we are talking about hunger, how can we forget the founder of ideology of langar? Langar means vand chakna. In Hindi, it's baat ke khana. And let me remind you, it is the topmost principle of Sikhism. Now, इस टाइम मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. उन्होंने गुरु नानक देव जी की साखी है. एग्जैक्टली वो स्टोरी नहीं है, वो साखी है. एक बार गुरुजी जब अपने किशोर अवस्था में पहुंचे तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि आप जाइए और बिजनेस करके आइए, कोई व्यापार करके आइए. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ. इसके लिए उन्होंने उनको 20 रुपए दिए. जब वो जा रहे थे रास्ते में उनको कुछ गरीब लोग दिखे. उन्होंने अपने जो उनके चेले थे उनसे कहा कि आप जाइए राशन ले आइए, हम यहीं पे लंगर लगाएंगे. उन्होंने वहां पे लंगर लगा दिया. और उसके बाद वो जब अपने घर पहुंचे उनके पिताजी ने कहा क्या सौदा करके आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया पिताजी मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ. सच्चा सौदा मीन्स द सुप्रीम सौदा. उसके बाद उनके पिताजी पहले तो थोड़े नाराज ने कहा कि मतलब ये जो सौदा तुमने किया है ये हमेशा चलेगा. और वही बाबे नानक का लंगर है जो 550 साल आज हो गए हैं और वो चल रहा है.
गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही चीज हमें सिखाई है, that we should do langar seva and eat in pangat in spite of all caste, creed, color, religion and financial status also. Thank you, Charanpreet, for sharing this inspirational and informational piece of information with all of us. But ये सारी पॉजिटिविटी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ डेटा आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग कंपेल हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे इस तरफ सोचने के। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था कि 2 से 2,500 लोग लास्ट 3 मंथ्स में कोरोना वायरस से मर चुके हैं, विच इज एक्चुअली रियली वेरी स्केरी। 2000 से ज्यादा लोग 3 महीने में ऑलरेडी मर चुके हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, जस्ट इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड इसकी नंबर्स बहुत ही हाई हैं, बट हम लोग कंपैरिजन के लिए अभी इसको इंडिया तक रख के चल रहे हैं। लेकिन हर दिन, अगर मैं आपको बोलूं, हर दिन 7,000 लोग सिर्फ इंडिया में मरते हैं स्टार्वेशन से, हंगर से, मैलन्यूट्रिशन या उससे रिलेटेड उसकी वजह से हुई डिजीजेस या बीमारियों से, Exactly. which is equivalent to 6.3 lakh people on every quarter, and that is, can you see the comparison? yes, it is truly disastrous. फिर अगर मैं बात करती हूँ कि हम इसको लेके इतने इग्नोरेंट क्यों हैं, तो फॉर्चुनेटली ये कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कम्युनिकेबल नहीं है तो हमारा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता है। Exactly. तो हमें इसको लेके नेगेटिव नहीं होना है, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज द ह्यूमैनिटीज ओनली एंड बिगेस्ट होप। जैसा कि बज एल्ड्रिन ने भी कहा था कि इफ वी कैन कॉन्कर स्पेस वी कैन कॉन्कर हंगर ऑल्सो, बट इसको करना इतना आसान नहीं होगा। इसको करने के लिए हम सब, किसी को कुछ तो किसी को बहुत कुछ करना होगा, लेकिन करना हम सबको पड़ेगा। सबको मतलब सबको, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो, किसी देश में हो, किसी शहर में हो, किसी जिले में हो, किसी गांव में हो, किसी गली में हो, किसी मोहल्ले में हो, किसी सोसाइटी में हो, सबको मतलब सबको। इसी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी चीज को करना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर प्लानिंग करके चलना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 पार्ट्स में हंगर को डिवाइड किया, जिसका डिस्क्रिप्शन चरणप्रीत जी हमें देंगे। नाउ वी कैन डिवाइड द पीपल इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वो हैं जो कुछ अपने से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो जॉबलेस है, और दूसरे वो जो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो अर्न कर पाए, जैसे कि अनाथ बच्चे, गरीब बुजुर्ग लोग या फिजिकली हैंडीकैप, जो हाथ पैरों से लाचार हैं। तो पहले वाली कैटेगरी हमें ये कहती है कि जो बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहे हैं या जॉबलेस है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, द अल्टीमेट वे टू कॉम्बैट हंगर इज टू मेक पीपल सेल्फ डिपेंडेंट। हियर सेल्फ डिपेंडेंट इज द की। वी कैन मेक पीपल सेल्फ डिपेंडेंट। कैसे हम इसको कर सकते हैं? लेडीज से शुरुआत करते हैं। हम लोग लेडीज से शुरुआत करते हैं। हम उनको क्या कर सकते हैं? उनको सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, स्वेटर बनाने की मशीन, पापड़ बनाने का रोजगार, ये सब हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ वो खुद को पालेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, और अगर अच्छी कंडीशन रही तो वो हो सकता है किसी और की भी हेल्प कर सके। बेसिकली हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं चेन रेशियोज पे, जो कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, हर जगह अप्लाई होता है। फिर चाहे वो सोशल इश्यूज हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह का एजुकेशनल रिफॉर्म ही क्यों ना। अब इसमें हम सोचते हैं कि मशीनरी, इसकी कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? मशीनरी की कॉस्टिंग हम चाहे तो एक छोटी सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि अभी हम लोग ये पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों के कुछ भी व्यूज हो, कुछ भी कमेंट्स हो, आप भी हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं इस लाइव वीडियो में इंक्लूड करने के लिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और हम लोग उसको साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। यस,
नाउ अब हमें कोई मशीनरी खरीदनी है तो हम एक नॉर्मल 5-6 लोग का ग्रुप, ऑफिस में ग्रुप है, कुछ ना कुछ हर आदमी डोनेट अपनी क्षमता के अनुसार करता है, तो हम लोग नॉर्मली 500 रुपीज, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता दिलमीत, हम कर सकते हैं 500 रुपीज। अगर हम लोग 6 लोग भी मिला लेंगे 3000 रुपीज हो जाएंगे, और एक अच्छी सिलाई मशीन हम किसी एक नीडी औरत को प्रोवाइड करा सकते हैं। नीडी लेडी, किसी भी मैन वुमन, किसी को किसी के लिए भी सिलाई मशीन का काम, आप इस चीज को बिल्कुल मत लेके चलिए कि वो कोई औरत ही कर सकती है, आदमी भी इस काम को कर सकते हैं। अच्छे डिजाइनर्स और अच्छे टेलर्स हमारे पास मेल सोसाइटी ही होती है, इसीलिए तो इस तरीके से हम लोग हर महीने, सिर्फ एक ही नहीं, हर महीने अगर हम ऐसा करते तो साल में 12 लोगों को हम स्वरोजगार प्रोवाइड कर पाएंगे, उन्हें आत्मनिर्भर। इमेजिन 12 लोग, जो हम लोगों ने आज तक कभी सोचा भी नहीं। 12 लोग। अब इन दिस पैनल टीम यू मस्ट हैव गॉट मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप कि लेबर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हम बाहर गाँव नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे, आधी खाएंगे पूरी खाएंगे, मगर हम बाहर जाके काम नहीं करेंगे। ऐसा कहना है प्रवासी मजदूरों का। हमारे पास इस तरह के सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अब हम चाहें तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ये है, एक तो कोविड-19 ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद दूसरा हो सकता है वो कोविड-19 से ना मरे, तो हो सकता है वो भूख से मर जाए, मगर कहा गया है बी पॉजिटिव, नीड इज द मदर ऑफ डिस्कवरी। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पिछले ही भाषण में कि ये मौका है आपके लिए स्वरोजगार बनाने का, इसलिए हम इस पॉजिटिव थॉट को रखते हुए कि वो कुछ ना कुछ स्वरोजगार अपने लिए करेंगे, और अगर वो कुछ नहीं भी करते तो हमारा जो देश है यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, अगर वो खेती करेंगे तो हम बहुत अच्छे मील्स पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, इनको बहुत ही कम पैसे में अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। दैट विल कंटिन्यू टू कॉम्बैट हंगर। क्योंकि हम इंडियंस ने, हम ह्यूमन बींग्स ने हारना कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि अगर सीखा होता तो आज हम और आप इतना दूर बैठे इस लॉकडाउन में इस तरीके से बातें नहीं कर रहे हो। तो हारना नहीं है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। इस लड़ाई में ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ चुकी हैं, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ सब इंडिविजुअल्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हम इस लाइव सेशन से ये चाहते हैं, ये कन्वे करना चाहते हैं कि ये सब हमें सिर्फ कोरोना वायरस पेंडेमिक में ही नहीं, जो डेटा हमने आपको पहले शेयर किया, जो लोग हर दिन मर रहे हैं, उसकी तरफ भी फोकस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी इन्वॉल्व है, कुछ मैं नाम लेना चाहती हूँ, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको मेंशन किए बिना आगे बढ़ना डिफिकल्ट। ग्लोबल लेवल पे यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO, खालसा एड, जो कि हर तरह की किसी भी सिचुएशन में, डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन में लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, जैसे कि वो सीरिया तक भी पहुंचे। स्मॉल प्लैनेट इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी एलियंस विद फैमिली एंड फार्मर्स, ये भी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नेशनल लेवल पे अक्षय पात्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। रॉबिन हुड आर्मी, इनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये दो तरीके से लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी की मदद करते हैं। पहला, ये फूड वेस्टेज को रोक रहे हैं, और दूसरा, ये उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं जो रात को भूखे सो रहे थे, क्योंकि हमारी कंट्री की 19 करोड़ पॉपुलेशन, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट 19 करोड़ पॉपुलेशन रात को बिना खाने के सो जाती है। इस पे चरणप्रीत कौर जी रॉबिन हुड आर्मी के बारे में कुछ बताना चाहती है, प्लीज बताइए। जिस तरह की रॉबिन हुड आर्मी है, ऐसी आर्मी, ये आर्मी नाम ही बहुत अच्छा है। आर्मी का मतलब अगर हम उस सेंस में लें तो वो बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, तो इसका सेंस ये है कि इस तरह की आर्मी हर जगह, हर सिटी और हर गांव शहर में होनी चाहिए, ताकि वो देखिए हर जगह शादियां होती हैं, हर जगह रेस्टोरेंट्स होते हैं, हर जगह सब कुछ होता है, तो हमें वहां से कलेक्ट करें ये लोग और लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इस तरह की कोई आर्मी बनाए, आप लोग अपने 4-5 फ्रेंड्स मिलकर लोकल लेवल पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड,
गुरुद्वारा बंगला साहिब, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जो कि हर दिन कोरोना वायरस में ही नहीं और सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हर दिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं और मील्स प्रोवाइड करते हैं। लोकल लेवल पे अगर मैं इलाहाबाद की बात करती हूँ तो हम लोग कोर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी जुड़े हैं, जिनमें से है गुरु तेग बहादुर गुरसिख सभा, गुरु तेग बहादुर नगर सेवा समिति, गुरु नानक फाउंडेशन। इनका फेसबुक पेज भी है, आप विजिट कर सकते हो और डिटेल्स जान सकते हैं। रामलीला कमेटी गुरु तेग बहादुर नगर। लेकिन अगर हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस लेकर आना पड़ेगा जो सिंपल भी हो और फॉलो करने में इजी हो। तो अब ये सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनको हम लोगों ने दो सॉल्यूशंस फिलहाल इस लाइव सेशन के लिए ढूंढे हैं और हम लोग इसको अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ऑलरेडी इसको फॉलो भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं भेजने हैं, कुछ नहीं करना है, इसे आपको इंडिविजुअल लेवल पे जुड़ना है, खुद करना है। चरणप्रीत प्लीज पहला डिस्कस करिए। पहला है हमारा, पहला सोल्यूशन जो हम देना चाहते हैं वो है 5 मील्स इन एक महीने में 5 टाइम का खाना आप एडजस्ट करिए किसी गरीब को खिलाने में। प्लीज इलाबोरेट। 5 वक्त का खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बेयर करनी है। हम सबके घर में अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही। बट क्योंकि अगर हम नहीं भी बेयर कर सकते, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम में हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सब अपनी सेविंग्स पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन इसे हमें अपना एक लाइफ टाइम गोल बनाना है, 5 मील्स इन अ मंथ। तो बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो जो मील्स वो फास्टिंग के टाइम पे नहीं ले रहे या किसी टाइम उनको लगता है कि वो सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो अपने मील्स टिफिन 5 लोगों को 5 मंथ में 5 लोगों को डोनेट करें। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि एनकरेज एटलीस्ट 1 पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ऐसा करने के लिए हम कहाँ जाएं, हम सबके पास शायद इतना वक्त नहीं है कि हम लोगों को ढूंढें और उनको कहें कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बिकॉज एट द एंड वी आर सर्वाइविंग इन अ वेरी क्रूशियल स्टेज। तो उसके लिए आपके घर में मेड्स होती हैं, आपके घर में सफाई करने वाले आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। आप 30% मेड्स और सफाई वाले ही होते हैं जिनके बच्चे इस टाइम पे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल्स में ऑलरेडी मिड डे मील्स स्टार्ट हो गए हैं, तो एटलीस्ट एक बच्चे को हम भूखा रहने से रोक सकते हैं। हम उसे कहें कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो एक एजुकेटेड फैमिली बनाएंगे, एक एजुकेटेड फैमिली एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाएगी, एजुकेटेड सोसाइटी एजुकेटेड कंट्री बनाएगी और एजुकेटेड कंट्री एजुकेटेड वर्ल्ड बनाएंगे। और इस तरीके से हम लोग हंगर को इराडिकेट करने में अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। देखिए फिर से वही चेन वाली बात यहाँ पे आ गई जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, द मोस्ट फेमस चेन रिएक्शन इन केमिस्ट्री। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा है, ये मे बी सब लोग इसको ना अप्लाई करना चाहे, मतलब बहुत अगर आप हैंड टू माउथ नहीं है और आप कुछ कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एटलीस्ट ½ kg ऑफ मिल्क पर डे किसी की न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इट विल हार्डली कॉस्ट 868 रुपीज, विच इज वेरी वेरी लेस देन अमाउंट विच वी used to go to restaurants. Restaurant going is very much in culture these days. Yes. आप अगर नॉर्मली मेरे जैसा इंसान 4 बार जाता है, आप 3 बार जाइए, एक कम करिए, इतना भी डिफरेंस लाएगा, इतना भी डिफरेंस लाएगा। प्लीज। अब ये सारी चीजें करने में हमें 2 क्वेश्चंस, जब अभी हम लोग पर्सनल लेवल के लोगों से ये चीजें डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, हम इसे कहाँ करें, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने मील्स के फॉर्मेट में आपसे डिस्कस कर लिया। ये सब कुछ अभी नहीं करना है, एक बार ये सारी चीजें ओवर होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, तब शायद हमारा जो सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला, वो हमें बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत एक अच्छी दिशा में सोचने के लिए। दूसरा, एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अभी नहीं, लेकिन वंस दिस कोविड-19 इज ओवर, कभी भी आप अपने आपके घर में टॉडलर्स हैं, टीनेजर्स हैं, कभी भी आप इस तरह की किसी भी सोशल कॉज के लिए जाइए, तो सबको नहीं बताना है, फेसबुक लाइव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपके बच्चे सीखेंगे तो सिर्फ आप तक ये चीजें सीमित नहीं रहेंगी, वो बड़े होंगे,
आगे चल के वो भी करेंगे। और किसे पता है कि कहाँ से एक ऐसा जेम निकल रहा है कि हमारी पूरी वर्ल्ड को बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज वो डिलीवर करे। तो आपको अपने बच्चों को हमेशा साथ रखना है। और ये नहीं, कोरोना वायरस के टाइम पे अगर आप उनको साथ नहीं ले जा रहे, कहीं नहीं ले जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको इन्फॉर्म्ड रखिए कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, तो उनको गेट ओवर, फिर आप उनको लेके भी जाइए, उनको आश्रम भी लेके जाइए, सब जगह लेके जाइए, लेकिन अभी आपको उनको इन्फॉर्म्ड जरूर रखना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर दिलमीत मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मनी इज ओनली यूजफुल इफ यू गिव इट टू पीपल हु नीड इट। अगर जरूरतमंद को आप पैसा देंगे, उससे ज्यादा यूजफुल चीज मनी कभी नहीं हो सकती। मनी बैग में रख के कभी फायदा नहीं देगी, जरूरतमंद बहुत फायदा देगी। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि लंगर इज द बेस्ट सर्विस यू कैन डिलीवर, ह्यूमन सर्विस इज द बेस्ट बिजनेस दैट यू कैन, इट इज द ट्रू बिजनेस। इसी चीज को आगे लेके जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना है, आपने कुछ भी व्यूज देने हैं, कमेंट्स देने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके अपने व्यूज और कमेंट्स दे सकते हैं www.richesmultiservices.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919979786। इसी को हम प्रस्थान की ओर लेके जाते हैं। इसके लिए एक पहला छोटा सा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, मगर लाइन यहीं पे खत्म नहीं होती। चैरिटी बिगिंस एट होम बट इट शुडंट एंड देयर। ऑफ कोर्स बचपन में हमने ये सुना जरूर है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कभी कभी जब आप सोचते हैं कि हम बाहर किसी की मदद करें तो आपको लगता है कि पहले हम घर में किसी अपने रिलेटिव को देख लेते हैं। जरूर करिए, बहुत जरूरी है, लेकिन पहले उसको, उसके बाद आपको अपने घर से बाहर भी निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट शुडंट एंड देयर। और कभी भी आपका ये लगता है कि मुझे किसी को कुछ देना है, मैं कहाँ जाऊँ, जब आप ऐसे इंटेंशन रखेंगे कि आपको देना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेगा, आपको बहुत सारे, आप बस इंटेंशन रखिए, आपको बहुत लोग दिखेंगे जो लेने को तैयार होंगे। एक बार अगर हमारे अंदर गिवर की टेंडेंसी आ गई तो टेकर्स हमें ऑलरेडी बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ चरणप्रीत जी ने बताना है आपको, तो प्लीज आप कंटिन्यू। अब इसके लिए हम लाइनें कुछ हम लोगों ने लिख रखी है अपने से, उसको हम लोग शेयर करना चाहेंगे। दिलमीत जी की बचपन की वो है, शायरी लिखती है, पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती हूँ। अब हम लोग फिलहाल हम दोनों ने मिलके लिखी है, उसके लिए हम आपसे विदाई लेंगे। उसके बाद, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त फिर से आएगा, फिर से हर चेहरा खिलखिलाएगा, फिर ये दिल गुनगुनाएगा, इंडिया फिर से मुस्कुराएगा, इंडिया फिर से मुस्कुराएगा। Thank you very much. Thank you everyone. Lots of love from God Sisters and Riches Multi Services. Thank you. Thank you. Take care. Stay safe. Stay home.